everyone! Welcome back to my channel Maths Wale Inki Sir. In today's session we are going to solve practice set 3.1 from the topic polynomials. So let us start the session. So the first question given is state whether the given algebraic expression are polynomials and justify. अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें ये पूछा गया है कि we need to check whether these are polynomials or not. ठीक है, और अगर polynomials है तो justify करना है, नहीं है तो भी justify करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के लिए जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो पहले समझ लेते हैं. सो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय polynomials, right? So what are polynomials? Polynomials are the algebraic expressions in which the variables involved have their powers as whole numbers. ठीक है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसको. Algebraic expression having power of the variable, having power of the variable as whole number, right? मैं यहां पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं. Algebraic expression having power of the variable as a whole number is called as a polynomial, right? अब algebraic expressions क्या होते हैं ये आपको पता है. What are algebraic expressions? Algebraic expressions are nothing but combination of constants and variables, right? Algebraic expressions are nothing but combinations of constant and variable. मतलब अगर मैंने लिख दिया है 3x तो ये क्या है, एक algebraic expression है, right? Because it is a combination of constant 3 and variable x. उसके बाद अगर मैंने लिख दिया 3x minus 4 तो it is also an algebraic expression because it is a combination of constants and variable, right? उसके बाद अगर मैंने लिख दिया 3x square plus 2x plus 1, this is also an algebraic expression because it is a combination of constant and variable, right? लेकिन अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 2 तो ये क्या है, algebraic expression है क्या? Yes, it is an algebraic expression. कैसे, ध्यान से देखना है. This 2 is a constant number और हमने एक टॉपिक सीखा है exponents. This constant number 2 can be written as 2 multiplied by 1, correct? 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 multiplied by 1. और exponents में हमने क्या सीखा है, this 1 can be written as x raised to 0. x raised to 0, right, is 1. Therefore अब अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या है, combination of constant and variable. Therefore we say that this 2 is also an algebraic expression. मतलब अगर आपके सामने 2, 3, 4, 5 इतने ये नंबर्स भी आ रहे हैं तो they are also algebraic expressions. समझ में आ गया what do you mean by algebraic expressions? करेक्ट. अब डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल्स की? पॉलिनोमियल्स आर द algebraic expressions whose power of the variable, power of the variable की पावर क्या होनी चाहिए, it should be a whole number. अब whole numbers क्या होते हैं, whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. whole numbers कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से and they continue up to infinity, right? अब मैं इसके एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है, केयरफुली देखना है. द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो अगर मैंने लिख दिया है 3x plus 4, अब क्या ये algebraic expression है? Yes, it is an algebraic expression because it is a combination of constant and variable. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. उसके बाद वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर. अब यहां पर वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर कितनी है, 1. तो 1 होल नंबर है क्या, yes. तो ये पॉलिनोमियल है क्या, yes. समझ में आ गया. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, करेक्ट. एक और एग्जांपल लिख लेता हूं. अगर मेरे पास है यहां पर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, yes. नेक्स्ट वेरिएबल की पावर, यहां पर x की पावर कितनी है, 3, यहां पर x की पावर कितनी है, 2. तो क्या ये पॉलिनोमियल है, yes, it is a polynomial क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं, होल नंबर्स है. सो इट इज आल्सो अ
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब केयरफुली देखना है। अब अगर मैंने लिख दिया 3 रूट एक्स प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? ध्यान से देखना है। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x। और अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या है? रूट x। और रूट x का मतलब क्या होता है? इट इज x टू द पावर 1/2। रूट x का मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1/2। लेकिन 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है। Therefore we say that this is not a polynomial. 3 into root x plus 2 is not a polynomial. समझ में आ रहा है? एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास है 3 into x raised to minus 1 plus 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, क्योंकि x की पावर यहां पर कितनी है? -1, which is not a whole number. Therefore this is not a समझ में आ गया व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं y प्लस 1/y। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करना है। तो इसके लिए पहले क्या करना है? जो भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है सबको ऊपर लेकर आ जाना है। तो यहां पर ये y एज इट इज है, प्लस ये जो डिनोमिनेटर में y है इसको ऊपर लाना है। तो यहां पर y की पावर कितनी है? +1। तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है उस टाइम पर उसकी साइन हो जाएगी चेंज। मतलब दिस विल बी y रेज टू -1। y रेज टू 1 है, और जब आप ऊपर लेकर जा रहे हो तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। फिर से क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते वक्त क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो जा रही है पावर की। ठीक है, सो अब क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। पावर कितनी है यहाँ पर? -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फुल स्टेटमेंट में आंसर लिख के बता रहा हूं आपको। सो देयरफॉर इट इज not a polynomial because power of the variable is not a whole number। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहां पे क्या है? -1, which is not a whole number. Therefore this is not a polynomial. क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2 माइनस ऑफ √5 into x। ठीक है, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। √5 से कंफ्यूज नहीं होना है। 5 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर 1/2 है। हमें क्या चेक करना है? सिर्फ वेरिएबल की पावर। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज power of the variable is a whole number। power of the variable is a whole number। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। therefore it is a polynomial। समझ में आ गया है? अब देखते हैं थर्ड। सो थर्ड में क्या दिया गया है? x² प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये दो मैंने फुल स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिए। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यस और नो। आपको फुल स्टेटमेंट्स लिखना है। ठीक है, सो अब ये पॉलिनोमियल है क्या? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर x की पावर यहां पे कितनी है? 2। x की पावर यहां पे कितनी है? 1। तो दोनों भी 2 और 1 दोनों भी कैसे है? होल नंबर। देयरफॉर वी से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है,
आपको ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है। मैंने सिर्फ शॉर्ट में यहां पर लिख दिया है एस, यस, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। क्लियर है, क्योंकि आपको यहां पर जस्टिफाई बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2m² प्लस 7m माइनस 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। वेरिएबल क्या है, m, तो यहां पर m की पावर है 2, यहां पर है 1, तो दोनों ही कैसे है, 2 और 1 होल नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से यस। उसके बाद फिफ्थ क्या दिया गया है, 10 कांस्टेंट है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता है? यस। कैसे? दिस 10 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 0। 10 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 0 मींस कितना होता है, 1। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, और 0 क्या है, होल नंबर है, देयरफॉर इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है। और ऐसे जो कांस्टेंट नंबर्स है जिन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ऐसे कांस्टेंट नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, we need to write the coefficient of m³, और यहां पर कुछ सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। So the first question is m³, second is -3/2 plus m minus √3 m³, and the third question is -2/3 m³ minus 5m square plus 7m minus 1। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, मुझे यहां पर क्या पूछा गया है, m³ का कोएफिशिएंट। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेना है m³ के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रेजेंट है दैट फॉर्म्स द कोएफिशिएंट ऑफ m³, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, m³ के साथ में को जो भी टर्म प्रेजेंट है इन मल्टीप्लिकेशन, इट फॉर्म्स द कोएफिशिएंट ऑफ m³। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज, फर्स्ट क्वेश्चन में m³ के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो कोएफिशिएंट इज 1, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³, यहां पर मैं लिख देता हूं कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज, अब इस क्वेश्चन में m³ के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, विद साइन -√3, राइट, साइन के साथ में लेना है, तो यहां पर साइन कौन सी है, माइनस, और क्या प्रेजेंट है, √3, सो कोएफिशिएंट इज -√3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी देखना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज, अब यहां पर m³ कहां पर है, यहां पर m³ के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, -2/3, सो द कोएफिशिएंट इज -2/3। समझ में आ गया, जिसका भी कोएफिशिएंट निकालना है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर या वेरिएबल है विद साइन इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है अभी? ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m, तो आप क्या लिखते हैं, m के साथ कौन प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ 1, राइट, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ m इज 1। समझ में आ रहा है अभी? वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m², तो m² यहां पर है, तो m² का कोएफिशिएंट क्या होता, -5। क्लियर है अभी? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट द पॉलिनोमियल इन x, और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 7। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमियल।
binomial and trinomial. So what is a monomial? Monomial is an algebraic expression having only one term, जिसमें सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है, that is called as monomial, right? यहां पर मैं डेफिनेशंस लिख लेता हूं. जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल. जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल. एंड जिसमें तीन टर्म्स प्रेजेंट है उसे क्या कहोगे आप? ट्राइनोमियल. algebraic expression having one term, monomial. algebraic expression having two terms, binomial. algebraic expression having three terms is a trinomial. यहां तक क्लियर है? इसके बाद यहां पे एक और वर्ड आ रहा है, डिग्री, राइट? सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन. व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द expression. Degree is nothing but highest power of the variable in the expression. ठीक है? अब मैं कुछ यहां पर एग्जांपल्स लिख लेता हूं. ठीक है? केयरफुली देखें. मोनोमियल, an expression having only one term. तो मैंने यहां पर लिख दिया 3x. तो ये क्या है? सिर्फ सिंगल टर्म है. टर्म्स कैसे डिफाइन होते हैं? टर्म्स कब फॉर्म होंगे? जब प्लस और माइनस साइन आती है. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने यहां पर लिख दिया 3x प्लस 4 या फिर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है? अब आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है, राइट? अब इसे दो टर्म्स क्यों बोलना है? बिकॉज टर्म्स आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक से सुनना है. टर्म्स आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन. टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन. आप कनेक्टेड बोल सकते हो या सेपरेटेड बोल सकते हो बाय प्लस और माइनस साइन. तो यहां पर एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4. ठीक है? अब यहां पर क्या हो रहा है? ये एक्सप्रेशन को कट कौन कर रहा है? प्लस साइन कट कर रही है. कितने पार्ट्स में कट कर रही है? दो पार्ट्स में. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट. तो इसमें कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है. और दो टर्म्स है, इसका मतलब ये क्या है? बाइनोमियल है. ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है. कैसे? ये माइनस साइन की वजह से दो टर्म्स है, करेक्ट? तो ये एक्सप्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. देयरफॉर इट इज हैविंग टू टर्म्स एंड इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल. वैसे ही ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए? तीन टर्म्स होने चाहिए. तो मैंने लिख दिया सपोज 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. तो यहां पर दिख रहा है आपको तीन टर्म्स. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. ये एक प्लस साइन, ये दूसरी माइनस साइन. तो ये क्या काम कर रहा है? सेपरेटर या कनेक्टर का काम कर रहा है. तो ये दो साइंस है, इसलिए ये तीन टर्म्स हो गए. समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज डिग्री. सो व्हाट इज डिग्री? मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन. तो मैंने अगर एक्सप्रेशन लिख दिया है 4x, ठीक है? दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है? तीसरा एक्सप्रेशन लिख दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. करेक्ट? तो इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? वेरिएबल की पावर देखना है. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है? 1. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1. सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखोगे तो x वेरिएबल है, यहां पर पावर है 2, यहां पर 1. तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2. वैसे ही यहां पर पावर कितनी है? 3, यहां पर 2. तो हाईएस्ट कितना है? 3. सो 3 becomes the degree of the polynomial. क्लियर है? अब ये जो डिग्री मैंने डिफाइन की है वो कितने वेरिएबल्स के लिए? सिर्फ हर क्वेश्चन में आप देखो सिर्फ एक एक वेरिएबल प्रेजेंट है x. लेकिन अगर एक साथ दो वेरिएबल्स आ गए तब क्या करोगे? ठीक है? केयरफुली देखना है. तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है m स्क्वायर n प्लस n और मुझे पूछा गया फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो कैसे लिखोगे आप? यहां पर करना है इंडिविजुअल टर्म्स. ठीक है? तो ये हो गई एक टर्म, ये दूसरी टर्म. अब देखना है इनके पावर्स. तो इसकी पावर कितनी है? 2. इसकी पावर कितनी है? 1. तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3. यहां पर एक ही है तो कितना है? 1. तो अब हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है?
इस पर्टिकुलर टर्म में 3, राइट? देयरफॉर वी से दैट द डिग्री इज 3। एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूं। अगर मेरे पास है x² y प्लस x, ठीक है, तो अब इसकी डिग्री फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? यहां पर है 2, यहां पर है 1, तो 2 + 1 इज 3, और यहां पर क्या है? सिर्फ 1, करेक्ट? तो डिग्री कितनी बन रही है? डिग्री बन रही है 3, हाईएस्ट पावर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री पे ही है, वहां पर मैं और एग्जांपल्स लेके आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन के लिए जो हमें समझना था समझ में आ गया। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल एंड नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन में वी नीड टू राइट द मोनोमियल विद डिग्री 7। मोनोमियल मतलब क्या होना चाहिए? सिर्फ सिंगल टर्म। तो सपोज मैंने सिंगल टर्म लिख दिया x, राइट? अब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 7, मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 7। हो गया आंसर, समझ में आ गया? सिंगल टर्म है क्या? यस। हाईएस्ट पावर 7 है क्या? यस। देयरफॉर इट इज अ मोनोमियल विद डिग्री 7, राइट? सेकंड क्वेश्चन, वी नीड टू राइट द बाइनोमियल विद डिग्री 35। अब बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, तो पहले मैंने लिख दिया सपोज 4x + 3। अब ये बाइनोमियल है क्या? यस। डिग्री कितनी चाहिए? 35। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35, वेरिएबल है x, तो इसकी हाईएस्ट पावर मुझे क्या रखना है? 35। हो गया। सो दिस इज द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुझे क्या लिखना है? ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। तो सपोज मैंने लिख दिया 4x² + x + 1, सॉरी x + 4, ठीक है? तो यहां पर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 हो रही है। ट्राइनोमियल है क्या? यस। 3 टर्म्स आ गए, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, हमें नहीं चाहिए 2, हम इस 2 को निकाल देते हैं। हमें हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 8, तो मैं यहां पर रख देता हूं 8। सो द ट्राइनोमियल विद डिग्री 8 इज 4 × x⁸ plus x plus 4। समझ में आ गया? सो दिस इज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है? यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है? उनकी डिग्री लिखना है। अब डिग्री का मतलब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, ठीक है? अब यहां पर क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में √5। अब √5 क्या है? ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √5 × x⁸, बिकॉज x⁸ इज 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। तो डिग्री कितनी हो गई? 0, ठीक है? तो यहां पर x⁸ है, तो डिग्री कितनी हो गई? फिर से 0। यहां पर x⁸2 है, हाईएस्ट पावर 2। यहां पर m⁻10 है, तो हाईएस्ट पावर 10, सो डिग्री इज 10। यहां पर p है वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? फिर 1, सो p⁻1 है, मतलब डिग्री इज 1। नेक्स्ट y - y³ + y⁵, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, सो डिग्री इज 5। नेक्स्ट x y z, यहां पर एक साथ 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस को भी कैसे हैंडल करना है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। x y z + x y - z, तो आपको क्या करना है? पहले x की पावर 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, करेक्ट? यहां पर 1, यहां पर 1, तो ये कितनी हो जाएगी? इसका 1 + 1 + 1 इज 3। दिस बिकम्स 1 + 1 2, और यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? सिर्फ 1, तो हाईएस्ट पावर इज 3, सो द डिग्री इज 3, राइट? एंड लास्ट यहां पर 3 है, 3 + 5 इज 10, राइट? 5 + 1 इज 6 एंड 1 + 1 इज 2, तो हाईएस्ट पावर इज 10, सो द डिग्री इज 10। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1,
क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2 एंड क्यूबिक मतलब पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3. सिंपल. लीनियर मतलब डिग्री 1, राइट. क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 एंड क्यूबिक मतलब डिग्री 3. तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री कितनी है 2. तो डिग्री 2 है, इसका मतलब कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. अब यहां पर p का हाईएस्ट पावर है 1, डिग्री कितनी है 1. डिग्री 1 मतलब कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट y की हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री 1, सो पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हाईएस्ट पावर, यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 2 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3. हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3. डिग्री 3 मतलब कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3 है, इसलिए पॉलिनोमियल कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट a स्क्वायर, डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड लास्ट r क्यूब मतलब हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. इजी है. डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल. समझ में आ गया है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें क्या करना है? हमें यहां पर दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें उन्हें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? उस पॉलिनोमियल को हमें ऐसे अरेंज करना है such that the powers of the variables are arranged in descending order. हमें ऐसे अरेंज करना है such that the powers of the वेरिएबल की पावर को हमें कैसे अरेंज करना होगा? It should be in descending order, right? तो पहले अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें से हाईएस्ट पावर को आइडेंटिफाई कर लेना है. तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? m क्यूब मतलब 3. ये हाईएस्ट पावर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले लिख देना है हाईएस्ट पावर. तो हाईएस्ट पावर के साथ कौन है? m. तो ये हो जाएगा m क्यूब. उसके बाद 3 के बाद क्या आना चाहिए? 2. तो 2 वाली कोई टर्म प्रेजेंट है क्या? नहीं है. तो आप क्या लिखोगे? प्लस 0m स्क्वायर. समझ में आ रहा है? इस पावर 3 के बाद क्या आना चाहिए? पावर 2. तो इस पॉलिनोमियल में तो पावर 2 वाली कोई टर्म प्रेजेंट ही नहीं है. तो मैं यहां पर क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? प्लस 0m स्क्वायर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. नेक्स्ट प्लस क्या आना चाहिए अब 2 के बाद? 1 मतलब सिर्फ m. तो ये है यहां पर प्रेजेंट 5m. और लास्ट पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है? समझ में आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा है? यहां पर n की पावर 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद यहां पर कुछ भी नहीं है. मतलब क्या होता है? m रेज़ टू 0. तो ये हो गई कांस्टेंट टर्म 3. समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. वैसे ही सेकंड ट्राई कर लेते हैं. सो सेकंड का मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हाईएस्ट पावर वाली टर्म. तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म यहां पर कौन सी है? हाईएस्ट पावर वाली टर्म है y रेज़ टू 5. y रेज़ टू 5 के बाद क्या आना चाहिए? y रेज़ टू 4. तो 4 वाली टर्म प्रेजेंट है क्या? यस. 5 के बाद क्या आना चाहिए? 4. तो प्लस 2y रेज़ टू 4. उसके बाद क्या आना चाहिए? y रेज़ टू 3. तो y रेज़ टू 3 की टर्म प्रेजेंट है क्या? यस. सो दिस इज प्लस 3y रेज़ टू 3. करेक्ट. उसके बाद y रेज़ टू 2 की टर्म, राइट, माइनस y स्क्वायर. 2 के बाद y की टर्म, सो दिस इज माइनस 7y. करेक्ट. y के बाद कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए. कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर क्या है? प्लस 0. यहां पर कोई कांस्टेंट, सॉरी, यहां पर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है. कौन सी है? -1/2. सॉरी, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? -1/2. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल. समझ में आ गया है?
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो राइट द पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ऐसा बोला है। तो पहले ऐसा क्वेश्चन आने के बाद जैसे ही हमें पूछा गया है राइट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बता देता हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को मुझे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो पहले मैं उसकी टर्म लिख लेता हूं एक्स क्यूब। उसके बाद क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 0x²। फिर आना चाहिए x, यहां पर है क्या, नहीं, सो दिस विल बी 0x। उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज -2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब लिखना है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, तो ध्यान देना है अभी। सो कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखोगे आप, बस क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट्स लिख देना है। मतलब यहां पर वेरिएबल है x, तो पावर कितनी है 3, तो x³ का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1। फिर x² का कोएफिशिएंट 0, फिर x का कोएफिशिएंट 0, फिर कांस्टेंट लास्ट -2। सो दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट, सिर्फ एक टर्म मिसिंग है, आप देख सकते हो ध्यान से। सेकंड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाईएस्ट पावर कितना है 5y। आगे बस क्या बचा है कि कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कांस्टेंट लगा लेता हूं +0, राइट। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। सो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट कितना है 5, और उसके बाद कांस्टेंट क्या है 0। हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ में आ गया, इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड को भी पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, हाईएस्ट पावर है 4, तो ये बन जाएगा 2m⁴ प्लस उसके बाद क्या चाहिए m³ है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 0m³, करेक्ट। उसके बाद m², यस प्रेजेंट है, सो दिस इज -3m²। उसके बाद m, उसके बाद क्या चाहिए m, प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो +0m, और लास्ट में क्या करना है +7, कांस्टेंट टर्म। अब इसका लिखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। सो कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ जाएगा, पहले क्या लिखना है आपको, m⁴ का कोएफिशिएंट 2, उसके बाद m³ का कोएफिशिएंट 0, उसके बाद m² का कोएफिशिएंट -3, उसके बाद m का कोएफिशिएंट 0, और उसके बाद लास्ट कांस्टेंट 7। बहुत इजी है, समझ में आ गया। सो दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैं यहां पर स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से डायरेक्टली कोएफिशिएंट फॉर्म लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसका वही है -2/3, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या रहेगा, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या रहेगा, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा -2/3, राइट। एक ही कांस्टेंट नंबर है तो उसका कोएफिशिएंट फॉर्म भी क्या रहेगा -2/3। समझ में आ गया, इजी है। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए और देखना, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। हमें क्या करना है, यहां पर पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट फॉर्म दिया हुआ है और हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट द इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, कैसे करना है देख लेते हैं इन्हीं एग्जांपल्स का यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है 1, 2, 3। हमें क्या करना है, इसका लिखना है इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, तो केयरफुली देखना है कैसे। वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हो। सपोज मैं तीनों केस में वेरिएबल यूज कर रहा हूं x। ठीक है, वेरिएबल आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हो, मैं यूज कर रहा हूं x।
ठीक है। अब ये जो लास्ट है उसको ले लेना है कांस्टेंट, ठीक है। ये जो लास्ट नंबर दिख रहा है उसको ले लेना है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद काउंट करना है 1 2, क्या कर दिया है मैंने, लास्ट नंबर छोड़ दिया है, वो बन जाएगा हमारा कांस्टेंट। उसके बाद पीछे से काउंट करते आना है, तो ये हो जाएगा 1 और फिर 2, करेक्ट। तो ये जो यहाँ पर 2 आ रहा है इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1x², उसके बाद प्लस 2x प्लस ये क्या है कांस्टेंट। सो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म, इजी। एक और एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। इंडेक्स फॉर्म ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला है, इसको ले लेना है कांस्टेंट, -1 हो गया कांस्टेंट, ये छोड़ दो, पीछे से काउंट करते हो 1 2 3 4। तो यहां पर 4 आ रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो कोएफिशिएंट आ गया 5 और x⁴ प्लस कोएफिशिएंट है 0 x⁵, उसके बाद कोएफिशिएंट है 0 x⁵ प्लस कोएफिशिएंट है 0 x⁴ और उसके बाद लास्ट इज कांस्टेंट दैट इज -1। समझ में आ गया है। लास्ट क्वेश्चन थर्ड, दैट इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ थर्ड क्वेश्चन। केयरफुली देखना है, ठीक है। लास्ट क्या बन जाएगा कांस्टेंट, पीछे से काउंट करो 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, सो दिस विल बी -2x³, करेक्ट। हाईएस्ट पावर 3, कोएफिशिएंट इज -2, सो -2x³। उसके बाद प्लस 2x², क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है। उसके बाद -2x और लास्ट में कांस्टेंट +2। समझ में आ गया। सो दीज आर द इंडेक्स फॉर्म्स ऑफ दिस कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ में आ गया, इजी है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसके मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स लिख दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है जिनके डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, cubic polynomials are the polynomials having degree 3, linear polynomials are the polynomials having degree 1, binomials are the algebraic expressions having 2 terms, trinomials are the algebraic expressions having 3 terms, and monomials are the algebraic expressions having only 1 term। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स लिख दिया है। आप देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो और क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।